अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है लोड शेडिंग से आवाम कितना परेशान है, और दूसरी जानिब जो मुख्तसर सा एक वक्त दिया गया दुकानदार हजरात को, उसके अंदर दुकानदार जो हजरात हैं वो कितना मुतमिन हैं उस टाइम टेबल और उस स्केड्यूल से जो हुकूमत की तरफ से उनको दिया गया है, और उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है उसके बाद अवामी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है, और ख़ासकर जो कारोबारी तबका है वो कितना मुतासिर हुआ है। इस सब के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और जानेंगे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो कारोबारी तबका है वो इस पर क्या राय रखता है। तो आइए लेट्स मूव। ये बताओ, आप परेशान हो या नहीं नहीं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ भाई। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। लोड शेडिंग से कोई परेशान नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइट जो है वो मतलब 2 घंटों का क्या है कि 8 घंटे जो हो रही है लोड शेडिंग। इंटरव्यू दो यार। वालेकुम सलाम। परेशान नहीं सर, मरना ले पे हैं। मरन होए पे हो? हाँ जी सर ਇਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ सर ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 80 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ- ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਐਨ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਧੋਣ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਯਾਰ 2000 ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਦਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਜੀ, बर्दाश्त नहीं होना यार भाई ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है ऐसे ही है, मामला, तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहे हैं। कोई अच्छे की उम्मीद रखते हो भाई ने? बहुत औखी लग रही जी, नहीं लग रहा। बहुत औखी है। आप बताएं भाईजान, आप बताएं भाई, तो बहुत ज़्यादा जैसे सूरत हाल है उन्होंने बताया। क्या बताएं भाईजान, कोई सूरत हाल नहीं है। मैं थोड़ी बाजार में क्या ये बताएं, कारोबार की सूरत हाल ही नहीं है। काम का टाइम होता है 8 बजे, मार्केट बंद हो जाती है। सही है। अभी तक सुबह से हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की है। दिन के वक्त लाइट जा रही है फिर। दिन के टाइम भी लाइट जाए, अभी भी लाइट गई हुई है। काम का टाइम होता है, मार्केट बंद कर देते हैं। सुबह 10 बजे भी आके देखा, कस्टमर ही नहीं होता। हमारा दफ्तर वाला कस्टमर है, जिसको छुट्टी 7 बजे होनी है, उसने 8 बजे किधर से आना। तो आप क्या समझते हैं कि इसको रिवाइज किया जाना चाहिए? ये टाइम हमारा ओपन होना चाहिए। कारोबार की पोजीशन नहीं है इस वक्त। वैसे भी लाहौर के अवाम के लाहौर की वाम वैसे निकलती शाम को है, किस तरफ जाएं कुछ समझ नहीं आ रही है। दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो गए हैं। हो गया भाई, आप बताएं। बता तो दें, अब आप तो सुनो यार। भाई हम कुछ नहीं बता सकते, हम आप क्या मेरी बात बताएंगे। सुनो, मेरी बात सुनो। आप इधर रह रहे हो ना, पाकिस्तान में रह रहे हो ना? इधर ही रहे। इधर ही रह रहे हो ना? इधर ही रहे। तो इधर परेशानी हो रही है कि बिजली की वजह से, कोई बिलों की वजह से, कोई कारोबार की वजह से, कोई ज़िंदगी मुतासिर हो रही है? यार मैं सच बताऊँ ना, सच बताओ। ईमानदारी वाला, ये जो मैं तुम्हारे सामने नहीं करता हूँ ना, मेरे दिल में बहुत दर्द है, बातें है इसलिए
पहले एक गोली का आता था नींद का, अभी 2 का आता है। अच्छा। ठीक है, हमारा तकरीबन 80,000 रुपये खर्चा है महीने का किराया। उधर हमारा 2 दुकानें हैं, सही है। तो इनमें से खाने पीने का भी खर्चा बराबर नहीं होता। इतने बुरे हालात चल रहे हैं तो दुनिया को तो मैं अगर ऐसे आपको बताऊँ ना, अगर ये बॉर्डर खुलेगा ना तो खुदा की कसम सिर्फ ये इधर ही रहेगा ना, ये बच्चे भी भाग जाएंगे पाकिस्तान से। अच्छा। ये लोग तो आवाम को तो कोई रिलीफ देता ही नहीं है, कुछ भी नहीं देते। जो अब ना मेहनत मजदूरी करते हैं ना आवाम, अब ना ये भी नहीं करने देते। तो पता नहीं ये औरत मुसलत हुआ, पता नहीं तो क्या आप होगा। ये समझते हैं कि औरत को मुसल्लत होने से ये तमाम मामला बिगड़ेगा? हाँ ना, इसको समझ ही नहीं है मुल्क किस तरह चलाना होता है। तो जो उसके मशीर हैं, जो उसको बताने वाले हैं, मशवरा देने वाले हैं, वो ठीक मशवरे नहीं देते? भाई उसके पीछे जितना भी है ना, जितना भी उसके पीछे है, वो भी ऐसे हुए बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते। या तो उसको मुंह में मिटन वाला देता है, ये वजह है, और या पता नहीं डरा हुआ ये लोग। वरना पंजाब तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हाँ बिल्कुल, इधर से मुआशी सब बात कुछ है, चलता है, इधर से। लेकिन अभी इसी का एक भट्टा बिठा दिया उन्होंने। हाँ, बाकी शहरों में हमारा KPK में जाओ, उधर भी ऐसा ही है, सख्ती है कानून के मुताबिक, लेकिन इतना जुल्म। जितना कल हमारे मार्केट में 8 बज के तकरीबन 9 मिनट हुआ, पुलिस आ गया और लड़का उठा के लेके गया। अच्छा। तो इतना तो नहीं होना हाँ, चाहिए इतना ना, तो- इतनी ईमानदारी किसी और काम में करो, ये मुल्क ऊपर हो जाएगा। सही है। तो बातें इतना है, किसी से भी पूछो, गुस्से से कोई बोल ही नहीं सकते कि ये किस तरह हो गई बिल्कुल, हालत। इतने दिल भरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो सामने है, हर कोई परेशान है, और इतनी परेशानी कि लोग बात भी करना नहीं चाह रहे, और उनका दिल ये नहीं कर रहा कि वो आपको अपना दर्द जो है बता सकें या जाहिर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, अभी बात हो रही थी कि कारोबार के तो बहुत मंदे हालात हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुकूमत जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है हुकूमत में कमी है। हुकूमत के पास क्या है? हुकूमत के पास सिर्फ रोना धोना है। आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, आप बत्ती को शॉर्ट कर दो, आप कोई बहाना डाल लो ताकि लोगों की नज़रें जो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, जो आपसे पैसे मांगते हैं, वो कहें यार है तो मरे ने की पैसे मंगी है, तो बात डिलीट कर दें। हकीकत भी है, बोल तो आटे ही मतलब मैं अगर इंटरव्यू सर ले आ रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, सही ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ ਨਾ। स्विस बैंकों का जो मैनेजर है ना, उसने बड़ी देर पहले कह दिया था, उसने कहा था पाकिस्तानी सियासतदानों का इतना पैसा मवा पड़ा हुआ है, हम अगर सिर्फ अपने बैंकों में रखवा दें, ये दें ना किसी को, तो कितना पैसा उतर सकता है। हुन अच्छा हुन भी ਉਹਦੇ मोहसिन नकवी ਨੂੰ देखो, यही गल है, मोहसिन नकवी ने हुन भी ये गल की थी आवाम ਨੂੰ। सर सुन तो लो, उन्होंने क्या आवाम ਨੂੰ किया, अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं किया, या सियासतदानों ने क्यों नहीं किया? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਟੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਘਰ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ तो ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾत ਨੇ। पाकिस्तान भाईजान आप चारों तरफ से बंद कर दो, ये इतना बेहतरीन सर्वाइव कर सकता है कि आपकी सोच है, लेकिन इनकी जेब में नहीं जाएगा, इनकी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, इनके बाहर फ्लैट नहीं बनेंगे। भाई तरीकेकार ही कुछ नहीं है, कोई तरीकेकार ही नहीं है। वो सिर्फ है कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ हुकूमत लपेटी जाओ, बाद ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। मैं सारी जिंदगी वोट नहीं दिता, ਅੱਜ तक वोट नहीं दिता ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ के सवाल करना, मैं इनके सामने मुझे किसी दिन बिठाओ, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप मुझे किस तरह पूछ रहे हो कि मेरा हक नहीं है, मैंने वोट नहीं दिया, क्या आप वोट से आते हो? मुझे इस बात का जवाब दे दो। सवाल ही नहीं पता होता। एक बंदा भाईजान एक इलाके में 4 लाख वोट है, 80 लाख वोट पड़ जाता है, और जो मुर्दे ने उन्होंने वोट पै जाते हैं, तो तुम वोट ना लाते हो।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ भी प्रॉपर तरीके आवाम के सामने काउंटिंग हो, आवाम के सामने कैमरे 24 घंटे लगे हो और बहुत जी अंदर खाते जो ट्रैवलिंग हो रही होंगी ना वोटां दी एंबूलेंस कर देंगे अंदर, पता नहीं की बदलेगा की नहीं बदलेगा, सब ड्रामेबाजी आवाम नूं पिछे नुक्कड़ ते लाया बस। मैं आज तक वोट नहीं था भाई, मेरे पास आते हैं घर में वोट देने, भाई वोट दो, मैं कहा मैं आपको वोट क्यों दूँ जो मैं नहीं देता, मैं नहीं घर से बाहर निकलता, मुझे 5 साल आपके आगे जलील होना पड़ेगा। मैं अस्पताल में जाता हूँ ना, चपरासी मुझे कहता है साइड पे हो जा। आप लोग इतने अवेयर हो गए, आप लोग इतने एजुकेटेड हो गए, आपको इतनी अवेयरनेस आ गई, आप इतना समझ गए हैं इन लोगों को, डरते डरते नहीं है आपसे, इनको कोई डांट डर नहीं है आपका, मतलब कि यार सच बोल रहा है ये वो जी पाकिस्तान में या किसी भी छोटे मुल्क में आप चले जाओ जहाँ पे अवाम ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਦਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਚੀਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਰਪ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾइल ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। इस वक्त ये भी शुक्र अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्र तो अल्लाह का अदा करना, शुक्रिया अदा करें डॉक्टर अब्दुल करीर खां का जिसने आपको इस काबिल बना दिया हुआ है। भाईजान ये भी ज़्यादा की मेहरबानी है, वरना मैं डर के कहता हूँ भाई, उन्होंने तो कहा था कि भाई आप बस बना दिया ना, ख़त्म कर दो। उसने कहा था इसराइल तक मार करने के लिए 5000 किलोमीटर का बनाने लगो मिसाइल, उन्होंने कहा नहीं तेरा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है, तू इतनी दूर के लिए जाना पे। तो मतलब कल की सोच कोई नहीं है, आज का आज ही काम है, बस आज जो कर लिया ठीक है, कल दी कल वेखांगे, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀਰ। चलो बिजली का शॉर्टफॉल की गल कर रहे हैं, एक बेहतर होइएगा, मतलब कभी सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता भाई, आप मकरूज मुल्क हो। नाज़िम जब आपके वफाकी वज़ीर जो हैं लगारी साहब की, अवैस लगारी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे बस की ये बात नहीं है, अगर आप खुद इस चीज़ को ऑन कर लें या क्लेम कर लें कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आवाम का तो यही नैरेटिव नहीं सकते। आपके पास जब डॉलर शॉर्ट होना, आपने कहना बिजली बंद नहीं, बंद कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਲਰ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ 50000 ਤੋਂ 60000 ਡਾਲਰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। रेमिटेंस वगैरह भी ज़ाहिर नहीं कर सकते अपनी कि मैंने भाई कुछ भी नहीं है, कोई लॉन कोई चक्कर ही नहीं है। लॉ बैटर्स या कोई चीज़ नाज़िम जो सूरत हाल है, भाई ने बिल्कुल कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक भी करता हूँ, जो मामला बने हुए हैं अभी वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, और अगर आवाम इतना बाशऊर हो चुके हैं, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतने एजुकेट हो चुके हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए कि खुदारा जो है पाकिस्तान के अवाम, बिल्कुल जी पाकिस्तान के अवाम को साथ लेकर चलें, और इनका एतमाद लेना बहुत ज़रूरी है, और इनको ये यकीन करवाएं और बावर करवाएं कि इनके भरोसे और इनके एतमाद के साथ ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और हुकूमत करते हैं, क्योंकि हुकूमत इन्होंने इन्हीं अवाम के ऊपर करना है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे, और जो भी मामला चल रहे हैं उससे मज़ीद अवाम कितने मुतासिर और परेशान हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़िन। नाज़िन और नौजवान हमारे सामने एक हैं, और ये यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, ये कौन सी शॉपिंग आप कर रहे हैं? पोलो टी शर्ट विंडो शॉपिंग है ये, अच्छा ये विंडो शोल्डर शॉपिंग कह सकते हो इसे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये शोल्डर शॉपिंग करना यहाँ पे इजी है या मुश्किल है? यार बहुत मुश्किल है। पहले हमारे स्टैंड लगे होते थे, वो फट्टे होते थे, उन पे आराम से कस्टमर आता था, डिस्प्ले लगा होता था, दुकान की तरह देखता था। मुश्किल है। दूसरी तरफ मुझे ये बताओ, लोड शेडिंग जो चल रही है उससे कितना मुतासर हुआ है? लाइट तो आ ही नहीं रही है, लाइट आती है दोपहर में आती है, तब ज़रूरत नहीं है, अभी गई हुई है 2 ढाई 3 घंटे से गई हुई है, और 8 बजे से पहले भी चलेता नहीं है। लाइट मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आती है वर्किंग आवर। उसके बाद बिजली जो है ये मज़ीद महंगी कर रहे हैं। हाँ महंगी भी कर रहे हैं, और रात जाने के बाद भी नहीं। मुझे ये बताओ, आप लोग ये दिन को मजदूरी करते हो, रात को जब लाइट नहीं आती, हमारे घरों में ये मामला आता है, जब 2-2 4-4 घंटे का कह के 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे, और खासकर रात में, जी। तो आप कैसे फ्रेश आ सकते हो काम के ऊपर, और ये कैसे करोगे? मतलब यार हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत करके अपनी हिम्मत पे ही आ रहे हैं, वरना हुकूमत तुम्हें कोई रिलीफ नहीं दे रही है। नहीं, रात को मच्छर से लड़ना है, सुबह पीरा वालों से लड़ना है, हुकूमत से लड़ना है, बिजली से लड़ना है, सारी ज़िंदगी लड़ना ही है, अपने बल पे ही कुछ करना है। और टैक्स हर चीज़ के देने हैं, जो हमें बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, और टैक्स डबल से भी ज़्यादा ले रहे हैं ये।
है बिल्कुल। आप बताएं, आपका सर्वाइवल भाई ने तो बता दिया, आप बताएं कैसा घर का निज़ाम चल रहा है, ये बताओ कितना हुकूमत या आवाम तो आपसे ताउन कर रहे हैं, ये जो हुकूमत सर तावन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरा अल्ट्रेशन का काम है, ज़ाहिर है लाइट नहीं है तो फिर काम कहाँ से होगा। हाँ लाइट का है बिल्कुल। लाइट तो उन्होंने कहा था सिर्फ 2 से 3 घंटे जाएगी, इतनी नहीं आएगी। सर 2 से 3 घंटे का घंटे बाद आती है, 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। सही है। कितनी देर की लोड शेडिंग? 1-1 घंटे की। नहीं दिन में अगर आप 8-10 घंटे यहाँ होते हो तो कितनी देर नहीं लाइट होती? सर मैक्सिमम 6 से 7 घंटे। आप बताएं। ये अभी 1-2 दिन में ऐसा नहीं हो रहा, बाकी पिछले दिनों तो मैं तो समझो हर थोड़ी देर बाद लाइट जा रही थी। हाँ जी, लोड शेडिंग हो रही है। लानिया हो जी जी। 4 बजे लाइट गई है, ये अब आई है, ये कारोबार 7 बजे फिर चली जाएगी और 8 बजे मार्केट बंद। हम लोग, फिर ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग हो गया ये? हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया भाई, क्या बताएं बस। नहीं बताएं। अल्लाह ही हाफिज है। ठीक, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे हालात के अंदर हुकूमत क्या ताउन करे आपसे? हम तो ये कहेंगे कि एक तो मार्केट की टाइमिंग बढ़ाएं, ठीक है। दूसरा मार्केट की रौनक ख़त्म हुई हुई है, स्टॉल क्रीम ब्लॉक की रौनक है। अगर आप पुराने आने वाले हैं तो आप देखें ये मार्केट डेड है इस वक्त। ठीक है। अच्छा कस्टमर आता है ना, फिर कस्टमर बढ़ जाता है। अभी कस्टमर की ज़्यादा टाइमिंग क्या है? कस्टमर की टाइमिंग यही है, असर गर्मियों में जो ना काम होता है वो मगरिब के बाद स्टार्ट होता है और मगरिब के बाद मार्केट बंद कर देते हैं ये। आप 8 बजे अगर आप यहीं हैं तो आप 8 बजे बेशक इधर रहिएगा, आपने देखना है मार्केट में कस्टमर होना है और इन्होंने वो पीरा ने आ जाना है हारन देते हुए, जी बंद कर दो जेड़ा खुला है। 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे। और यार कोई चल किसी को गाहक खड़ा है उन्होंने डील करें दे, आएंगे सील कर देंगे, नहीं जी हमें तो ऑर्डर है। और भाई हम लोग हमारे टैक्स से पल रहे हैं, लेकिन वो ख्याल ही कोई नहीं है किसी का। आपकी मार्केट कोई यूनियन वगैरह नहीं है जो जाके बात करें इनसे? बस वो सारी हिले हुए हैं और हमें मिले हुए हैं, वही हिसाब है। कोई ताउन नहीं की करते हैं, माल जब्त कर लेते हैं, क्या करते हैं? माल भी जब्त कर लेते हैं, दुकान सील कर जाते हैं, जुर्माने LDA वो आ जाती है। LDA क्या लेने आते हैं? LD के लेने सील करने आती है, जिसकी दुकान खुली हुई नहीं है। करनी आती है, LDA स्टॉल वगैरह जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, जैसे ये अब ये हाथों में लेके खड़ा हुआ है ना भाईजान, इस पे वो पर्चा दे देंगे अगर ये उनके हाथ चढ़ गया तो इसका कसूर बता दें। वो रिजक कमा रहा है, हलाल कमा रहा है, कानून होना कोई कानून कल को पास वो किया हो। कहते हैं आप इस तरह से कोशिश नहीं कर सकते तो उससे क्या फिर आप बताएं, आप हम क्या करें? मरियम नवाज से कहें कि फिर हमें अपॉर्चुनिटी दें इनको। मुआवजा वाले? कौन से वाले? ये वाले भाई? पता नहीं। अच्छा अब ये देखें ना, अगर वो हाथों में लेके नहीं बेचेगा तो वो क्या करेगा, आप बता दें। नहीं यार कह सही रहे हैं, हुकूमत को मतलब क्या मैसेज चले, मैं तो बता ही रहा हूँ आपके तवज्जो से जाना चाहिए ना, हकीकत परेशानी तो आप लोगों भाई, हुकूमत से यही अपील है कि जो मार्केट है ना, जो मार्केट है जैसे ये क्रीम ब्लॉक है, इसके बाहर आप इंक्रोचमेंट करें, जो मर्जी करें आप उठवाएं, लेकिन यार मार्केट की हदूद तो रहने दें। हाँ ठीक है, मार्केट के अंदर इसकी गुंजाइश निकाल भाईजान दुकानदार भी खुश था जब स्टॉल लगते थे और काम करने वाला भी खुश था, क्योंकि काम होता था, बेशक किराया ज़्यादा थे, लाख था 80,000 था, वो कमा के ही देता था ना भाई। अकेला भाई नहीं है बच्चा यहाँ पे, यहाँ पे तो कितने ही नजर आ रहे भाई हैं। 5,000 वाले आ जाएंगे, ये क्या करें? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी आप यहाँ खड़े हैं, पीरा वाले आएंगे ये भाग जाएंगे, और अगर ये हाथ चढ़ गए तो सामान जब्त है और उस पर पर्चा है। अच्छा यार आप तो छोटे से, मेरा भाई छोटा सा है। ये देखिए ये भी बेच रहा है। ये देखें कितने छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह यार। अच्छा आपको क्या काम करने हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये वो उम्रें हैं जब बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, जब बच्चों की जो बेसिक नीड है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि इतने छोटे बच्चों को काम नहीं करना। कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो हमारा है, ठीक है, इन बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को, ये दिखा यार, इधर भी दिखा, क्या ये बच्चे हैं, ये मतलब इनको काम करने की ज़रूरत है कि इनको काम करना चाहिए, ठीक अभी है। आप खड़े हैं ना, जी जी। अभी पीरा वाले अगर आपके करते आ जाए तो आप ये देख रहे हैं, ये सब गायब हो जाएंगे, ये दौड़ जाएंगे अपनी दुकान पे। गैप हो जाएंगे। ये समझे इनके हाथों से माल गायब होगा और ये कहाँ जाते हो भाग? बाग के अंदर दुकान पे भागे? सही है। दुकान पे ना असल में पकड़ते सीधा पार्क इनको चाहिए कि टाइम खोल दें अच्छा अनलिमिटेड, जैसे तो इनको क्या करें, इनको कैसे बंद करें? सर इनको भी काम करने दें और अनलिमिटेड टाइम कर दो, सही है। और जो लोड शेडिंग का ऐलान है वो कर दें, जी हाँ जी लाइट जाएगी, तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होगा, लोग कारोबार भी करेंगे और अल्लाह भला करे अपना मार्केट टाइम भी खुल जाएगा। और इनका जो ये कहते हैं ना मईशत तबाह हो रही है, वो मईशत दोबारा फिर चल पड़ेगी, क्योंकि कारोबार होगा तो फिर चलेगी।
बच्चे, ये मासूम से चेहरे जिनको स्कूलों में होना चाहिए नाज़रीन। मुझे इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी के साथ मैं खुद बड़ा एम्बैरस फील कर रहा हूँ इस वक्त इन छोटे छोटे बच्चों के सामने कि इन बच्चों की उम्रें स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने की हैं। इन बच्चों की उम्रें अभी कारोबार करने की नहीं है या ये सेल्समैन बनने की नहीं है। इन बच्चों को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था और तालीम हासिल करनी चाहिए थी, जो इनका बुनियादी हक है। और रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को, इन बच्चों के लिए स्पेशली सोचे। लेकिन मासवाए इन बच्चों के, बच्चे तो छोड़ें, बड़ों के मामलात भी जिस तरह से मुतासिर हो रहे हैं या वो जिस तरह से परेशान है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनका भी भाई का बिल्कुल ये ठीक बात है। भाई क्या कह रहे हैं दोबारा बताएं जरा। सर इनका कसूर ये है पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इन बच्चों का नाज़रीन बिल्कुल यही कसूर है कि ये पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए, बिल्कुल ऐसे ही मामला है। ठीक है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर अवाम की। अवाम जो है वो खासे परेशान है और एक तरफ हुकूमती अदारों से परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसियों से, और तीसरी जानिब जो है मामला जिस तरह से उखड़े और बिखरे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा परेशानी पीरा से है? पीरा से जो शोल्डर ये कर रहे हैं, बेच रहे हैं, शोल्डर शॉपिंग। हाँ जी, शोल्डर शॉपिंग पीरा से मसला है। ज़्यादा मसला पीरा से। अगर पीरा ये आपको इजाज़त दे देती है तो फिर मामला बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और 8 बजे की टाइमिंग जो है वो सूट नहीं कर रही। दिन में 1-2 पीस बिक रहे हैं हमारे। 1-2 पीस बिक रहे हैं जी जी। तो उससे कैसे घर का वो इस तरह ही है, 2000 डेली चाहिए, फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले बंदे। तो फिर 2000 तो मिल नहीं रहा। 2000 तो मिल नहीं रहा। हाँ जी, ऐसे ही है, बस अल्लाह बरकत डाल देता है, वरना वो हालात नहीं सही। टाइमिंग कम से कम 10 बजे तक होनी चाहिए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और मज़ीद हम देखते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है। जो बेचने वाले हैं या दुकानदार हजरात, और ख़ासकर बड़े छोटे दुकानदार, सभी इस चीज़ से परेशान हैं। दूसरी जानिब जो आवाम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, जो ख़ासकर यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है कि वो किस हद तक इस टाइम स्केड्यूल से मुतासिर हो रहे हैं और किस तरह से उनकी मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो चल रहे हैं, क्या उससे बेहतर हुए हैं या फिर वो भी इसी तरह से परेशान है। आइए देखते हैं। नहीं भाई मैं दसो जलालत की ये पूरे पाकिस्तान दी इन्होंने की किया है, इन्हें सारी दुनिया मरदी पई है, भुखा भी मरदी है। जहाज पे खरीदते ने, जहाज की लोड शेडिंग इन्होंने घंटे बाद ना की इंजन और नहीं सर जी की करते पे असी कल्पे हैं यार। शुक्र है करो कि असी अग्गा नहीं पे लाते अपने आप नूं। हाँ जी, असी इन्ने को कल्पे हाँ इस हुकूमत तो। इन्हें साड़ी जलालत कर दी है, किसी नूं कमान नहीं पे देंदे, किसी नूं खान नहीं पे देंदे। वो बड़ी वड्डी हुकूमत है, कारोबार है इन्हां दे रोलदे पे ने साडे कारोबार, कस्टमर साडे कोल कोई नहीं है। इन्होंने इन्ना को जलील कर दिता है सानू। बत्ती आ ही नहीं रही, मजीद बत्ती 33 हो गई है, मजीद महंगी कर है सर जी, मजीद महंगी कर दी है। इन्हें खाऊ हुकूमत है। मैं कह रहा कि हुकूमत की गल ऐसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की गल ना करो। अगर वो गल हो गई तो फिर बड़ी लंबी गल हो जाएगी, फिर फड़न फड़ान के उत्ते आ जाते हैं। इन्हों होर काम कोई नहीं होंदा। फिर कहते ने इन्हों फड़ लो, इन्होंने सच क्यों बोलिया। बस इन्नी गल पे करने तुहाडे अगे। हाँ जी आहो, अगर असी सच बोलांगे तो तुहाडे चैनल ने नहीं चलाना, साडे तो पहला तुसी फड़िया जाना वे। हाँ जी, मतलब है बस थोड़ी जी गैरत कर ले, थोड़ी जी गैरत करन, थोड़ी जी शर्म करन। वो कहंदा नहीं जी ख्वाजा कि थोड़ी जी गैरत करो, थोड़ी जी शर्म करो। तेरे कोल ते कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। तू एक औरत नूं नजायज़ हरा के तू सीट दे उत्ते बैठा, नजायज़ हुकूमत पे कर दे हो तुसी। फार्म 47 की हुकूमत इंदी हुकूमत होंदी है, और केड़ी हुकूमत होंदी है। हाँ जी, वो केड़ियां वो सही हुकूमतां सन, केड़ियां हुकूमतां दी तुसीं गल पे करदे हो। जेड़ी तुसीं एक दी गल करो ना, ओहदा मैं तुहानूं जवाब देना वा। 3 साल की हुकूमत पंजाब च इमरान खान दी आई सी, उन्होंने भी चलन नहीं दिता। उस तो बाद पहले तो इन्हां ही मुसल्लत पंजाब आया, उस तो बाद कोई आया पीपल पार्टी ते नून लीग, पीपल पार्टी नून लीग, पीपल पार्टी नून लीग। इन्हां ने की फिल्मां सुनाइयां, की करदे पे ने। मतलब चाहते हो दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। असी नहीं कहंदे, अल्लाह ताला दा हुक्म होएगा तो वो आएगा। हाँ जी, उन्होंने 5 साल बर्दाश्त भी कर लेगी, महंगाई भी बर्दाश्त की, हर चीज़ उनका एक रीज़न है।
ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 35 6 ਸਾਲ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, 8 ਵਜੇ ਫੇਰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, ये बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने है, जैसी सूरत हाल बनी हुई है बिल्कुल ये किसी हद तक जायज़ बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो आवाम जो है वो ना सिर्फ इससे नाराज़ होंगे बल्कि बनेगा बांग्लादेश बनेगा, फिर इश्तिहार और इंतशार जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। भाईजान मुझे ये बताएं, आप लगता है शॉपिंग करने की घर से आए हैं? जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाज़ार जो है वो 8 बजे अब बंद हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। हाँ जी। तो इससे क्या आपको कोई परेशानी है या आसानी है? समझते हैं यही टाइम ठीक है? नहीं, ऑफिस के टाइम देख के फिर जल्दी निकलना पड़ता है। थोड़ा रूटीन तो डिस्टर्ब हुई है, जाके जिम भी जाना होता है। तो और लोड शेडिंग की वजह से कितना डिस्टर्ब हो रहा है? लोड शेडिंग की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब उसकी वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, चलते हैं, लाइफ है। चलो, क्या कहेंगे अगर आप हुकूमत से कुछ कहना चाहें इस हवाले से कि क्या रिलीफ मिलना चाहिए आपको? सर लोड शेडिंग थोड़ा कम करना चाहिए और जैसे पहले चल रहा था वैसे बेहतर था। और टाइमिंग जो है टाइमिंग 10 बजे होना चाहिए। 10 बजे तक हाँ मार्जिन देना चाहिए। हाँ, 10 8 बजे आप तक। समझते हैं कि नहीं? हाँ, सारा रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सारे काम छोड़ के फिर शॉपिंग के आना पड़ता है। चलिए ठीक हो। नाज़रीन आपने देखा कि अवाम का भी यही कहना है कि कम से कम इनको वो वाला टाइम देना चाहिए कि जब जो है इनको भी इनके दफातर वगैरह में काम करने में कोई परेशानी ना हो और वहाँ से टाइम निकाल कर इनको आना पड़ता है। तो इस हवाले से इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए और अगर हुकूमत इस तरह से इस चीज़ के बारे में सोचती है और टाइम के लेकर ख़ास कर जो है अगर इसकी जो पाबंदी है वो 10 बजे तक के लिए कर दी जाती है तो इससे ना सिर्फ कारोबारी तबका जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा किसी हद तक, बल्कि जो कस्टमर हजरात हैं वो भी इससे मुतमिन हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमें देखने और सुनने को मिल रहा है, तो आइए हम और देखते हैं लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं और क्या मौक़िफ़ देते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ? नहीं बिल्कुल सही नहीं है, नहीं सही, बिल्कुल सही ਕੀ नहीं। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਵਨਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हुकूमत ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਡੈਮ ਡੂਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੱਖ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6:30 ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 7:30 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥੋਂ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ UPS ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋਈਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? नाज़रीन ये सही कह रहे हैं कि अगर कारोबार ही ठप हो जाएगा तो मामलात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हैं वो कैसे बेहतर होंगे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है जहाँ पर
अवाम ये समझते हैं कि ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है। और हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर जो हो रही है अभी, और कारोबार जो है वो 8 बजे अगर बंद होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इधर गरीब आदमी का रिज़्क बंद हो जाता है। ठीक है, लोड शेडिंग वैसे उनका बेड़ा गर्क हो जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आइंदा आने वाले कल के अंदर मज़ीद बेहतर होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी को। अल्लाह ने के बाद।